Good morning to all. In our previous video, we had seen what is the meaning of goodwill, its features, and need for valuing goodwill. Now, in today's video, we are going to see the next topic of this chapter, that is factors affecting the value of goodwill and the classification of goodwill. After going through this topic, you will be able to understand what all are the various factors that affect the value of goodwill and in which two types the goodwill is classified. So let us start. First, if we talk about the various factors that affect the value of goodwill, the first factor is efficient management. Two firms can have similar amount of physical resources, but it is the human resource on which the success of an organization depends. दो फर्म के पास सेम अमाउंट ऑफ एसेट्स हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक देयर आर टू फर्म्स, फर्म ए एंड फर्म बी. दोनों फर्म के पास सेम अमाउंट ऑफ एसेट है, सपोज ऑफ रुपीज़ 10 lakhs एंड 10 lakhs, यानी फर्म ए के पास भी 10 लाख की एसेट है और फर्म बी के पास भी 10 लाख की एसेट है. बट फर्म ए जो है कंपेयर टू फर्म बी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है. अब इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर दोनों फर्म के पास फिज़िकल रिसोर्स सेम है तो क्या रीज़न है जिससे फर्म ए कंपेयर टू फर्म बी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है? तो इसके पीछे रीज़न होता है उनकी एफिशिएंट मैनेजमेंट. यानी हमें पता है सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़. अगर आपकी मैनेजमेंट कैपेबल है, एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है, तो वो ज़रूर ऐसा प्लान तैयार करेगी, ऐसे वर्क करेगी जिससे आप मिनिमम रिसोर्सेस में हायर प्रॉफिट कमा सकते हो और अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रख सकते हो. सो द फर्स्ट फैक्टर दैट इफ़ेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी अगर आपको आपकी गुडविल बढ़ानी है तो सबसे पहला फैक्टर दैट विल इफ़ेक्ट द गुडविल विल बी एफिशिएंट मैनेजमेंट. If your management is efficient, it will increase the value of goodwill. Second factor that affects the value of goodwill is favorable location. If the business is located at a favorable place, it will result in increased customer walk-in and therefore your sales will increase, and due to higher sales there will be higher profit resulting in higher goodwill for the firm. अगर आपकी फर्म की लोकेशन फेवरेबल है, इसका मतलब है आपकी जो लोकेशन है वो ऐसी है कि वहाँ पे इजीली कंज्यूमर आपको अप्रोच कर सकता है. यानी आपके फर्म तक आने के लिए उसे डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती, ईज़िली वो आपकी फर्म तक पहुंच सकता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर आपके फर्म को विज़िट करेंगे एंड विल परचेज गुड फ्रॉम योर फर्म, विच विल इंक्रीज़ योर सेल्स. एंड इफ़ द सेल्स इंक्रीज, obviously the profit will increase, and when the profit increase it will result in higher goodwill for the firm. Now next factor which affect the value of goodwill is longer establishment of business. Generally the business which are established for long period of time are likely to have extensive customer base. जो बिज़नेस लंबे समय से चलते आ रहे हैं, जनरली देखा जाता है कि उन बिज़नेस के जो कस्टमर्स होते हैं वो कंपेयर टू न्यू फर्म ज़्यादा होते हैं. और अगर आपके कस्टमर ज़्यादा है तो आपका सेल्स भी ज़्यादा होगा, और अगर आपका सेल्स ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग इनटू हायर वैल्यू ऑफ गुडविल. देन नेक्स्ट फैक्टर which affects the value of goodwill is advantage of patents. Normally
patents are necessary for the manufacture or production of certain types of article. A firm which have the necessary patent will be able to earn higher goodwill because they have the right for the production of the good, and thus they will be able to produce the good. And if the production will increase, obviously the sales of the organization will increase, and thus the profit, resulting into higher goodwill. Next factor which affect the value of goodwill is quality. If a firm enjoys good reputation for the quality of its product, अगर एक फर्म अपने कंज्यूमर को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देती है तो कंज्यूमर बेस जो है एक फर्म का वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एज वेल एज द कंज्यूमर विल बी सेटिस्फाइड by the quality given, and he will refer your product to the other person, and indirectly your customer base will increase, which will again increase your sale and obviously the profit, and resulting in higher goodwill for the firm. Next factor which affect the value of goodwill is market situation. If a firm is in a business wherein demand for the product dealt in is higher than its supply, it will lead to lower capital requirement and higher profit. अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो जिसकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, यानी आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ज़्यादा डिमांड में है और उसकी सप्लाई कम है, तो यू हैव स्टडीड द लॉ ऑफ सप्लाई इन क्लास 11. लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अगर मार्केट में डिमांड प्रोडक्ट की ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज़ होगा, और अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी आप हायर प्रॉफिट कमाओगे ड्यू टू इंक्रीज़ इन प्राइस. तो इससे आपके सेल्स इंक्रीज़ होंगे और सेल्स इंक्रीज़ होने के साथ साथ प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, एंड इट विल रिजल्ट इन हायर गुडविल. And if the market situation is not favorable for your product, for example, if supply is more and demand is less, अगर आपके प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो आपको प्रोडक्ट को लो प्राइस में बेचना होगा, जिससे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है तो आपका गुडविल भी कम होगा. तो इट इज़ द मार्केट सिचुएशन दैट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल. Next factor is the past performance. The firm earning higher profit year after year will have better value for goodwill as compared to the firms earning lesser profit or incurring losses with similar amount of capital employed. If we see the past performance of any firm, और पास्ट में कंटिन्यूसली वो हायर प्रॉफिट कमाते आ रहा है, इसका मतलब है एक कंज्यूमर का उस फर्म पे ट्रस्ट है. एक कंज्यूमर उस फर्म को ट्रस्ट कर रहा है, तभी तो वो फर्म हायर प्रॉफिट कमाने में सक्सेसफुल रही है ड्यूरिंग इट्स पास्ट पीरियड. सो इफ़ यू आर अर्निंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट from past, it will result in higher profit in the future, resulting into higher goodwill of the firm. अगर आपने पास्ट में कंटिन्यूसली हायर प्रॉफिट कमाया हुआ है, ये शो करता है कि कस्टमर का ट्रस्ट फर्म पे ज़्यादा है, और अगर पास्ट में आप कंसिस्टेंटली हायर प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका मतलब आप आने वाले फ्यूचर में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे, विच विल help you to earn higher profit and thus higher goodwill. So these were certain factors which affect the value of goodwill, जिससे आपकी फर्म की गुडविल इफ़ेक्ट होती है. तो ये कुछ फैक्टर्स थे
जैसे कि एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, क्वालिटी, market situation and past performance. There can be other factors also, but these are the certain main factors which affect the value of goodwill. Now let us move further and see the two types in which the goodwill is classified. Generally, we classify the goodwill into two main types. First, purchased goodwill, and the second one is self-generated goodwill. As the name suggests, purchased goodwill is that goodwill for which the firm has paid consideration in cash or coin. For example, when you purchase any business, if the amount paid by you in the form of purchase consideration is higher than the net asset of that firm, of that business, then the extra amount which you have paid, it has been paid for the goodwill, and as you are paying the amount in cash, such goodwill it will be known as purchased goodwill. यानी जब आप किसी फर्म को खरीदते हो और उसकी नेट एसेट यानी एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, यू नो दैट जब आप किसी फर्म को खरीदोगे तो आप फर्म की सारी एसेट्स भी खरीदते हो एज वेल एज सारी लाइबिलिटीज़ भी ले लेते हो. तो जब आप वैल्यूएशन करते हो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ जो होती है वो होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस. यानी सपोज़ किसी फर्म की एसेट जो है वो 10 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपीज़ की है, और उनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो है 2 लाख रुपीज़. तो जो नेट एसेट है फर्म की वो कितनी होगी? टोटल एसेट दैट इज़ 10 लाख रुपीज़ माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ दैट इज़ 2 लाख रुपीज़. तो नेट एसेट है 8 लाख रुपीज़ की. बट इफ़ यू पे 9 लाख रुपीज़ फॉर द एसेट जो आपको मिल रही है 8 लाख रुपए की, और आप पे कर रहे हो 9 लाख रुपीज़, तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज़ आपने पे किया है वो पे किया है फॉर द गुडविल ऑफ द फर्म, फॉर द रेपुटेशन विच द फर्म हैज़ अर्न इन द पास्ट. आपको एक सेट बिजनेस मिल रहा है, तो आप 8 लाख की एसेट के लिए उन्हें 9 लाख रुपए पे कर रहे हो. जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज़ आप पे कर रहे हो वो है फॉर द गुडविल ऑफ द फर्म विच दे हैव अर्न इन द पास्ट. एज यू हैव पेड इन कैश और इन काइंड फॉर द गुडविल, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किया है, और जब आप किसी की गुडविल खरीदने के लिए पेमेंट करते हो तो ऐसे गुडविल को कहा जाता है परचेज्ड गुडविल. जनरली परचेज गुडविल आप कह सकते हो एक फीचर है परचेज गुडविल का कि ये नॉर्मली अराइज होता है जब आप किसी बिजनेस को खरीदते हो, और सिंस आपने इसके लिए कंसिडरेशन पे किया है तो ये आपके बैलेंस शीट में शो होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, परचेज्ड गुडविल एज एन एसेट आपके बैलेंस शीट में शो होगा. रीज़न, जब भी आप किसी एसेट के लिए पेमेंट करते हो इन कैश और इन काइंड, ऐसी एसेट आपके बैलेंस शीट में शो होती है. तो जब आप किसी बिज़नेस को खरीदोगे और उनको खरीदने के लिए आप उनकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ले लोगे, तो आप बैलेंस शीट में एसेट्स तो आप 8 लाख रुपए की शो करोगे क्योंकि जितनी आपके पास एसेट है, बट आपने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो पे किया था वो गुडविल के लिए पे किया था. तो जब आप गुडविल के लिए पेमेंट करोगे तो ऐसा गुडविल आपके बैलेंस शीट में शो होगा. परचेज गुडविल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट बिकॉज यू हैव पेड कंसिडरेशन फॉर इट. नेक्स्ट,
परचेज गुडविल का कैलकुलेशन सब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब है आप जब किसी फर्म को खरीदोगे तो आप पहले से उसकी गुडविल को वैल्यू नहीं कर सकते या एग्जैक्ट अमाउंट गुडविल की नहीं बता सकते कि इस फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए की है या 2 लाख रुपए की है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जा सकती परचेज गुडविल की या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। आप एक फर्म की गुडविल वैल्यू कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स अवेलेबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इट मीन्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव. It cannot be given in a specific term. Then, now let us talk about what is self-generated goodwill. Self-generated goodwill is that goodwill for which no purchase consideration has been paid, or it is that goodwill which is earned by your own efforts, by the efforts of the management, by the efforts of the partner. तो जब आप अपने खुद के एफर्ट्स के द्वारा गुडविल अर्न करते हो, यानी आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हो और उसके थ्रू आपने अपनी रेपुटेशन मार्केट में बनाई है, तो ऐसे गुडविल को कहा जाएगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल. Now, self-generated goodwill will not appear in the balance sheet. This is very important point. Purchased goodwill आप बैलेंस शीट में शो कर सकते हो, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है वो कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होता. रीज़न, आप अपने फर्म की गुडविल की वैल्यू एज एन एसेट अपने बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते. Then there is another important point that whenever we are going to do valuation of goodwill, that is we have various methods for valuation of goodwill. The valuation is done only for purchased goodwill and not for self generated goodwill. The valuation जो भी हम methods सीखेंगे goodwill calculate करने के, वो हमें generally purchased goodwill के लिए ही करने होते हैं. Reason, हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं जब हम अपने फर्म को बेचना चाहते हैं, या फिर हम किसी नए पार्टनर्स को एडमिशन देना चाहते हैं, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे. तो गुडविल जो परचेस्ड होता है उसी की वैल्यूएशन की जाती है. सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम अकाउंटिंग में शो नहीं करते. दैट्स वाई देयर इज़ नो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एज वेल एज इट इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ एनी फर्म. But if you are paying any consideration for earning goodwill, then it will be shown in the balance sheet. So in our next video we will see various methods for valuation of goodwill. Thank you.